Hello students, today we are going to discuss our 7th part of sets for class 11th. Class 11th topic is Lagrange sets. 6th video we have uploaded and now we will discuss part 7. It is 7th video based on sets in which we will discuss chapter 1.2, exercise 1.2. In the previous video, part 6, we have discussed equal and equivalent sets, and also we have discussed question number 4 and 5 of exercise 1.2. So let's start question number 1 of 1.2. There are many parts of question first, and we have to check which of the following examples are of empty sets. Empty sets. Previously we have discussed that what is empty set? The set which have no element. ऐसा set जिसमें कोई भी element नहीं है. The set which have no element is known as empty set, null set, void set. In the first part, it is given that set of odd natural number divisible by 2. It is a set in the set builder form. First of all, we will convert into roster form, and then we check number of element, mean cardinality of set. Set is odd natural number. We know that odd natural numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 up to infinite. These are odd natural numbers. Natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite. But we have to find odd natural numbers 1, 3, 5. Also divisible by 2. Divisible by 2. And we know that odd numbers are not divisible by 2. We know that odd numbers are not divisible by 2. We know that odd numbers are not divisible by 2. भी इसको नेम दे देते हैं. मान लीजिए ये A है, तो इस A में अब फाइनली कितने एलिमेंट आएंगे? Those odd natural numbers which are divisible by 2. तो odd natural तो ये हैं, डिविजिबल बाय 2 ये होने वाले नहीं हैं. इट मीन इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला जो ओड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो, बिकॉज ओड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो ये दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती. तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये कैसा सेट है भाई? एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट. और इसके लिए जो सेट एम्प्टी होता है उसके लिए हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है कि हम फॉर सिंबल यूज कर सकते हैं. इट इज़ ए एम्प्टी सेट. सेकेंड, सॉरी ये राइट डाउन कर लीजिए. देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. यस स्टूडेंट्स, part 2 is set of even
prime numbers, which is given that set of prime even numbers या even prime। तो दो बाउंडेशन है even and prime, even and prime। We know that numbers which are divisible by only one and itself is known as prime numbers। जो नंबर्स वन और itself उसी से डिविजिबल हों उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम नंबर्स में बात करें तो प्राइम नंबर्स फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 3, 5, 7, 11, 13, 17 up to, but foundation is prime even, प्राइम इवन। ये ए है तो ए बना लेते हैं भाई, इसे हमने नाम दे दिया ए, कुछ भी दे सकते हैं, बी सेट, सी सेट, ए सेट दे दिया। अब प्राइम में इवन, तो ये प्राइम इवन बाय ओनली सिंगल 2, इवन प्राइम ओनली एंड सिंगल नंबर इज 2, ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, even prime is a single number 2, so this set has a single element। number of element in this set is 1। सेट में 1 एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा है 2, ये बता सकते हैं भी 2 है, इज बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 मीन कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज 1, और नंबर ऑफ 1 है जिस सेट में एलिमेंट सिंगल होता है, सिंगलटन सेट। वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ ए सेट हैव नो एलिमेंट देन इट इज एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। इफ ए सेट हैव ए सिंगल एलिमेंट देन इट इज ए सिंगलटन सेट। So it's not empty set, not empty set, या ये कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट, भी एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, मीन कुछ ना कुछ तो है, 1 एलिमेंट सिंगलटन सेट। थर्ड पार्ट, x इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number such that x is a natural, we know that natural numbers are start from 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite, such that but foundation है x less than 5 and mean साथ में ये भी हो, भाई दोनों जरूरी हैं, और होता है ना, और जैसे आपके इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे में आता है, 2 फ्रेंड एंड ए बियर और यूनियन इज स्ट्रेंथ, भाई दोनों में से ये लीजिए तो भी सही है, ये लीजिए तो भी सही है, दोनों कर दीजिए तो भी सही है, तो वो और होता है, ये हो तो भी सही होता, ये हो तो भी सही होता, दोनों हो तो भी, बट एंड क्लास जो मीन है वो दोनों, राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों, ठीक है। तो x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। भी नेचुरल नंबर की बात करें तो वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट। इस सेट को नेम दे देता हूँ वही बी। नेचुरल नंबर तो होते सच दैट बाउंडेशन क्या, लेस देन 5, लेस देन 5 ये रहे, एंड और ये भी जरूरी है ग्रेटर देन 7, तो दोनों साथ में तो नहीं हो सकते भी, जो नंबर लेस देन 5 होला वो ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता,
और जो ग्रेटर देन 7 होला वो लेस देन 5 नहीं हो सकता। वो कह रहा है दोनों ही हो, लेस देन 5 ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर, सच टाइप ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 भी हो एंड ग्रेटर देन 7 भी हो। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आने वाला, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। मीन इसमें ऐसे लिख सकते हैं, मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कितने एलिमेंट हैं भाई? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 0 नहीं है। सपोज यदि मैं ऐसे लिख देता तो इन दोनों में चेंज है, इन दोनों में चेंज है। इट मीन नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और इट मीन इसमें एलिमेंट हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1। इसमें सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है, यहाँ एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, राइट डाउन। अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको इरेज करते हैं और फिर डिफरेंस ट्राई करते हैं। बी एक्स्ट्रा में यदि इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से चेंज कर देता है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर such that x less than 5 और x greater than 7। सेम है बट थोड़ा ही डिफरेंस हुआ इस वर्ड में। यहाँ ओ है और यहाँ एंड है, दोनों वर्ड्स का जो मीन है वो डिफरेंस है। वो ट्राई करते हैं। नेचुरल नंबर तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, इसको ए नाम दिया। यहाँ तो वर्ड था एंड, एंड का मीन ये भी हो और ये भी हो। मीन ऐसा नंबर जो 5 से लेस भी हो और 7 से ग्रेटर भी हो, दोनों कंडीशन साथ में चलें। साथ में मतलब जैसे हम बोलते हैं राम एंड श्याम गो टू जयपुर, तो मीन राम एंड श्याम दोनों जयपुर जाते हैं, दोनों जा रहे हैं। राम एंड श्याम, ऐसे बोलते हैं राम एंड श्याम विल गो टू जयपुर, तो इसका मतलब है राम एंड श्याम दोनों साथ साथ जयपुर जाएंगे। और यदि हम कहते हैं राम और श्याम विल गो टू जयपुर, यदि मैं ये कह दूँ राम और श्याम विल गो टू जयपुर, इट मीन या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा या दोनों भी जा सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन बनी, देयर आर 3 कंडीशंस। राम विल गो टू जयपुर, श्याम विल गो टू जयपुर और मे बी बोथ विल गो टू जयपुर। बट इफ राम एंड श्याम देन हियर इज ओनली ए कंडीशन कि राम और श्याम दोनों को साथ जाना पड़ेगा। एंड में सभी को साथ चलना पड़ता है। ओ में हो सकता है कि राम जाए, हो सकता है श्याम जाए। जैसे आपने इंग्लिश हिंदी में आता था, इंग्लिश में आता था टू फ्रेंड एंड ए बियर और यूनियन इज स्ट्रेंथ। इट मीन टू फ्रेंड एंड ए बियर लीजिए तो भी सही है, यूनियन इज स्ट्रेंथ लीजिए तो भी सही है, और दोनों कर दीजिए तो भी सही है। तो यहाँ और है लेस देन 5 ये रे और ग्रेटर देन 7 ये है। लेस देन 5 4 3 2 1, ग्रेटर देन 7 8 9 10 11, और तो दोनों ही मिल जाएंगे भाई। लेस देन 5 भी हो सकता है तो भी सही है, और ग्रेटर देन 7 हो तो भी सही है। तो इसमें तो अप टू इनफाइनाइट चल रहा है, तो ये इट इज ए इनफाइनाइट सेट। Okay students, I hope you have understood the matter of and or. Write down, then we will discuss further examples. Yes students, our next fourth part, why name दे देते हैं भाई भी।
y is a common point, y वो लेना है जो क्या हो कॉमन पॉइंट कॉमन हो किस में ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस, क्या कर रहा है एनी टू पैरेलल लाइंस, एनी कोई भी टू पैरेलल लाइंस। तो ये बना लेते हैं भाई टू पैरेलल लाइंस, कोई भी बना लेते ट्राई कर लेते हैं। दीज आर टू पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस द डेफिनेशन कॉन्सेप्ट 10th में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 4th ऑफ क्लास 10th a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2, then lines are parallel. Or if two lines which not intersect each other at any point, then they are parallel. रेल लाइंस जो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऑलवेज डिस्टेंस सेम रहने वाली है, वो पैरेलल लाइंस। अब वो रहा है कॉमन पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, इसमें इतना बताना है भाई दोनों में कॉमन पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट जो दोनों कॉमन जो दोनों में हो, ऐसा पॉइंट जो इस पर भी हो और इस पर भी हो कॉमन हो। तो जो पॉइंट इसमें आ रहे हैं वो इस पर नहीं आने वाले, और जो पॉइंट इस पर आने वाले हैं वो इस पर नहीं आने वाले। तो मीन देयर इज नो कॉमन पॉइंट। of any two parallel lines. There is no common point of any two parallel lines. Parallel lines जब भी ओनली उनमें पॉइंट कॉमन नहीं होता। और intersecting lines such that type of lines are known intersecting lines have a single common point. The lines intersect. If lines are intersecting, then they have a single common point. तो उनमें एक पॉइंट सिंगल कॉमन होता है जो उसका सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन 10th में बोलते थे। नो कॉमन पॉइंट, नो मतलब देयर इज नो एलिमेंट, सिंबल डिनोटेड बाय फाई। सो empty set, null set, void set. Okay students, now we will discuss question number 2. There are many parts out of which there are many parts. There are many parts, 5 parts, out of which we have classification which of the following are finite set and which are of infinite set. In the previous videos we have discussed finite, infinite, empty and non-empty set or singleton set. The set in which number of elements is countable mean finite, number of elements is finite, then they are finite set. And if a set have infinite element, then infinite set. First of all, set of months of a year. भाई सेट रोस्टर फॉर्म बनाना चाहे तो भी ठीक है और सीधा सॉल्यूशन बताना चाहे तो भी बता सकते हैं। सेट मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट किसका बनाना है मंथ्स का और ईयर में। एंड वी नो दैट इन ए ईयर आर 12 मंथ्स। भाई रोस्टर फॉर्म बनाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड वी नो दैट कंप्लीट कर सकते हो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट को नेम दे दें ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 12। काउंट हो गए, सो इट इज ए
finite set. So it is a finite set. Now part 2. In part 2, 1 2 3 up to continue. नेम दे देते हैं भाई सेट को ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट अप टू फाइनल डिजिट इज नॉट गिवन, लास्ट टर्म इज नॉट गिवन. 1 2 3 अप टू तो चल रहा है, बस लास्ट इज नॉट गिवन. अप टू 100 है, 10 100 है, क्या है 1000 है, कुछ भी गिवन नहीं है अप टू. तो मीन क्या है अप टू इनफाइनाइट. जब यहाँ कुछ गिवन नहीं है, यहाँ तक जा रहा है तो अप टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जा रहा है तो इट इज ए इनफाइनाइट सेट. और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, सो इट इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर सेट भी ऐसा ही होता है ना, तो ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर्स का है. थर्ड में 1 2 3 अप टू 99 और 100 सेट को नेम दे दिया भाई सी. तो इस सेट में भी 1 है, 2 है, 3 है, बट लास्ट टर्म भी बताई है भी अप टू इनफाइनाइट नहीं है. 99 और 100, लास्ट एलिमेंट इज 100. काउंट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 100 तक 100. तो भाई इनफाइनाइट तो नहीं है, सो इट इज ए फाइनाइट सेट. सो इट इज ए फाइनाइट सेट. इसमें अपने नाम दे देते हैं डी. इसमें चल रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. सॉल्यूशन बनाते हैं इसका. भाई इसमें क्या सेट तो बनाना है. एक तो है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक वर्ड तो ये है. पहले इस पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. वी नो दैट इंटीजर्स आर माइनस इनफाइनाइट, कंटिन्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट. इंटीजर्स आर माइनस इनफाइनाइट, -4 ये इंक्लूड नहीं होता इनफाइनाइट द्वारा, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. मीन बट पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव मीन only positive. 0 is neither positive nor negative. It is an important point that 0 is neither positive nor negative. 0 ना तो पॉजिटिव में इंक्लूड होने वाला है ना ही नेगेटिव में. जैसे यहाँ पॉजिटिव की बात की है तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं होने वाला. तो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5. It means it is equal to natural numbers. Positive integers are also equal to natural numbers, but foundation is greater than 100. मेन जो है ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स बताए हमने, बट उनमें भी वही जो ग्रेटर देन 100 भी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 100, ग्रेटर देन 100. तो वी नो दैट ग्रेटर देन 100 इज 101 102 103 104 105 अप टू इनफाइनाइट. बाउंडेशन तो नहीं है ग्रेटर देन 100, तो ये सभी ग्रेटर देन 100 है, तो बाउंडेशन लास्ट बाउंडेशन तो नहीं है. लास्ट बाउंडेशन नहीं है, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है. इट मीन जो सेट अप टू इनफाइनाइट जाएगा वो इनफाइनाइट सेट. Write down, then we will discuss further example.
Yes students, now we will discuss question number 3, in which we have also classified which of the following sets are finite or infinite. Question number 3, we have also classified which of these sets are finite or infinite. Likewise, question number 2. Question number 2, fifth part do yourself है. फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 डू योर सेल्फ है. और डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई. फर्स्ट, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस. इट इज अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी हैव क्लासिफाइड दैट इट इज ए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ लाइंस, सेट बाई लाइंस कौन सी, पैरेलल टू एक्सिस. डायग्राम बना देते हैं रफ. इट इज एक्स एक्सिस और इट इज वाई एक्सिस. लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इट इज एक्स एक्सिस, पैरेलल लाइंस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. डायग्राम सही बनाना बने तो इस पतला से ये दीज ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ऐसे तो भाई बनती जाएंगी ऊपर तक बहुत बनेगी. इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट तो बताना ही डायरेक्ट. तो इसमें नंबर लाइन्स बहुत बन रहे हैं तो इट इज ए इनफाइनाइट सेट. अब इसमें लाइन्स रोस्टर फॉर्म कैसे बने नहीं तो सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट बता देंगे इनफाइनाइट सेट. डायग्राम से आप शो कर सकते हो. You can show by the diagram that it is a infinite sets because number of lines parallel to x axis is infinite. x parallel lines है ये infinite है. Set of letters, letters किस लिए, English alphabet. English alphabet जो हैं उसके letters class set and we know that English alphabet contain only 26 letter A to Z. We know that English alphabet contain A, B, C, D, E up to Z. Number of set को नेम दे दें A. It is the roster form of A and number of elements in A is 26. Letters of English alphabet is 26. तो इट इज ए फाइनाइट सेट. थर्ड, सेट ऑफ नंबर्स, सेट बाय नंबर्स ला. सेट को नेम दे दिया अभी. सेट ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स ला विच आर जो क्या है मल्टीपल ऑफ 5. बड़ा सिंपल है. इट इज वेरी सिंपल दैट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. ये तो चलता जाएगा भाई. मल्टीपल 5, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60. सो इट इज ए इनफाइनाइट सेट. इट इज ए इनफाइनाइट सेट. Write down, then we will discuss further examples. Yes students, set of circles. अब इसमें circles we have discussed in class 10th about circles. Passing through 0 0. Set circles ला ऐसे सर्कल हमें बताने हैं जो कहाँ से पास होते हैं ओरिजिन से. इस डायग्राम जैसे बना रहा हूँ ये तो रफ डायग्राम है फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए सिर्फ भी. ये ओरिजिन है 0 0. सर्कल्स पासिंग थ्रू, इससे पास हो रहे हो. ये थोड़ा सही बना लेना भाई.
पहला थोड़ा बड़ा बन सकता है और बड़ा बन सकता है, ऐसे ये बन सकता है। इट इज देयर आर मैनी सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। इधर बन सकता है ऐसे, इस पर क्लास से बनते जाएंगे भाई, ऐसे इधर बन सकता है ऐसे। तो ऐसे तो बहुत से सर्कल बनने वाले हैं, मैनी बन जाएंगे। सो इट मीन इट इज ए इनफाइनाइट सेट। अब इसमें तो रोस्टर फॉर्म में तो बना नहीं सकते, डायग्राम में इसलिए सोच लिया है। मेन तो बताना है सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट। और इन द 10th क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट नंबर ऑफ सर्कल्स passing through a single point is infinite. Number of circles, ये डिनोट कर लेना, रिमार्क लगा लेना भाई। कोई भी पॉइंट आए, 0 0 नहीं, एनी पॉइंट नंबर, यहाँ 1 0 1 1 2 2 3 2 3 3, कोई भी पॉइंट्स आए उससे इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स passing through one point is infinite. Number of circle passing through, जो पास होते हैं वन पॉइंट, किसी भी वन पॉइंट का दिया हो उसने, उससे पास होने वाले सर्कल्स का नंबर इनफाइनाइट होता है। जैसे ये पॉइंट दे दिया उसने कहीं भी, तो इससे, जैसे ये पॉइंट है ना, इससे इतने सर्कल पास होंगे, इनफाइनाइट पास होने वाले हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज इनफाइनाइट। और नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। 3 पॉइंट हो तब सर्कल्स का नंबर 1 आता है। 3 डिफरेंट पॉइंट्स हो ना, तो तब सर्कल का नंबर 1 आता है। उससे मिनिमम पॉइंट हो तो इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव इट इज़ द 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। मैंने 4th नंबर दिया है, बट इन दी बुक इट इज़ द 5th पार्ट एंड 4th पार्ट डू योर सेल्फ। थोड़ा बहुत तो आपके लिए भी होना चाहिए ना, तो जो 4th पार्ट है वो डू योर सेल्फ है, पर मैंने नंबर 4 दे दिया क्योंकि 1 2 3 4 उस हिसाब से है ये 5th पार्ट। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 of chapter 1.1. It is our 7th part of sets. ठीक है। In the 8th part we will discuss question number 6 of chapter 1.2. Okay students.